बस उतना बोल दीजिए। Welcome back to the channel. And today I'm really privileged to call Dr. Sumedha on this platform. And yes, the motive of this video is to spread cancer awareness, prevention. And for this, I welcome Dr. Sumedha. Dr. Sumedha, thank you so much. You have given us your time and to spread awareness for the people and for the holistic development. Thank you, Dr. Sumedha. Thank you, ma'am. The privilege is all mine. First, I would like to introduce Dr. Sumedha amongst us. She has pursued from European Society of Gynecological Oncology, Athens, Greece. She had completed her fellowship in gynecological oncology from Tata Medical Center, Kolkata. She has also pursued Royal College of Obstetricians and Gynecologists, London, United Kingdom. The course is MRCOG. Then she completed her MD from Aryabhatta University, Patna. She also completed her ECFMG from United States of America. She had pursued her MBBS from Ranchi, so much and so forth. So let's get back to Dr. Sumedha. Dr. Sumedha, I have heard a lot about you and I come to know so many things from you from everyday conversations. And that's why I thought that I must uh, call you on this platform for a cancer awareness and what a person can do if they are diagnosed with cancer other than the treatment, other than what the doctors tell us. So thank you, Dr. Sumedha, and let's start with it. My first question is, Dr. Sumedha, uh, what are the causes of cancer? Listen, cancer as such is a very broad, specialty for healthcare treatment. Like cancer can arise from different types of organs. So there are organ-specific cancers, and there can be various causes for cancer. So if we go individually, basically there are different reasons for cancer. The first and foremost is what we take inside, like what we eat. Like nowadays, there are a lot of products which are packaged, a lot of junk food. Online delivery has become very easy. So all these can cause smoked foods. All these can cause cancer. One of the reasons. Other reason is smoking, drinking. These are all things which substances which we are taking inside, which are not in accordance with our natural health. Like these are not like our body has been made, so they don't go in accordance with that. Other thing also very important, which we as doctors also miss most often, is what we put inside our mind. That is also very important because that also goes inside. So nowadays what is happening is that basic necessities of each and every person is met with, but what happens, like a lot of comparison also occurs, like my neighbor has this, I don't have this, so I want. Or like children, family, they all have lots of goals and ambitions. Now resources are becoming limited, population is also increasing drastically. सो अभी इसमें क्या होता है कि लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चीज चाहिए। उसके लिए वो बहुत बार वर्कहोलिक हो जाते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स करते हैं, जॉब स्विच करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इनफैक्ट प्रेशर बस काम का नहीं होता, प्रेशर हॉलीडेज का भी होता है कि मेरे मतलब हमारे जान पहचान में वो इटली गए तो हमको फ्रांस जाना है, हमें ये करना है। जैसे मैंने आजकल जो हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं काफी यंग एज ग्रुप में, उन्हें बहुत कैंसर। And the most important thing which I am seeing nowadays is stress. So that is also one of the reasons. Now, the third important reason for cancer is genetic conditions. So these are the conditions we cannot change, which a person is born with. So we have to deal with it. And the most important thing about genetic conditions is that a person should be aware, like these are the conditions which can also happen. And if there is any chance that by any chance the person might be having those conditions, then he can get screened accordingly. सो उसमें क्या होता है कि अगर किसी फैमिली में किसी पर्सन को कैंसर हुआ,
विच हमें लगता है कि ये किसी जेनेटिक कंडीशन की वजह से हो सकता है. तो द फर्स्ट थिंग विच वी डू इज एजुकेट द पेशेंट एंड द लाइक फैमिली देन इन द मेंबर्स। नियरेस्ट फैमिली. एंड उसमें हम क्या करते हैं कि पहले जैसे कैंसर हुआ हम उसकी टेस्टिंग करते हैं. आजकल बहुत इजी हो गया है, ब्लड टेस्ट से जेनेटिक टेस्टिंग हो जाती है. उसमें अगर वी फाइंड कि वो ट्रेसेस हैं कि उनमें वो जेनेटिक कंडीशन हो सकता है, तो फिर जो नियरेस्ट फैमिली है विच आर एट रिस्क हम उनकी भी टेस्टिंग करते हैं. इफ दे ऑल्सो कम आउट पॉजिटिव, तो बहुत सारे मेजर्स होते हैं. जैसे ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर में एंजेलिना जोली के बारे में सबने सुना होगा. शी अंडरवेंट प्रोफाइलैक्टिक, मतलब पहले उन्होंने अपनी ओवरीज निकलवा ली क्योंकि शी वाज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन कैंसर लेटर ऑन एंड ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो. किसी में हम जैसे इंटेस्टिनल कैंसर है, आंत का जो कैंसर होता है, हम पूरी आंत तो नहीं निकाल सकते, पर उसमें हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि हाँ यू आर एट रिस्क, तो एटलीस्ट एवरी 6 मंथ्स और एवरी 1 ईयर यू कम एंड गेट योर सेल्फ चेक, सो दैट अगर कैंसर होता भी है तो हम अर्ली स्टेज में पिकअप कर सके एंड देन द पर्सन कैन गेट क्योर्ड. और in between also, if the person develops any symptoms, then one of the diagnosis of cancer should always be borne in mind. So these are, in a nutshell, these are the most important causes of cancer which I'm seeing nowadays. So, to sum it up, I would like to say that stress and our thought Yes. process play vital Mhm. role in developing cancer, other than the Yes. genetics. Yes, जेनेटिक्स हम ma'am. रिवर्स नहीं कर सकते, या वो Mhm. हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारा जो थॉट पैटर्न है और हमारा जो स्ट्रेस है और लाइफस्टाइल है वो हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. सो शुड आई से कि वी शुड अवॉइड प्रोसेस्ड फूड एंड आउटसाइड फूड एज एंड व्हेन पॉसिबल, जो भी Yes, ma'am. है. Any sort of food which comes in a packet, be it Maggie, be it a packet of chips, be it biscuits, anything which lasts long, then it should average last in an average way. Like for example, packaged milk. आप उसे बाहर रख दो, वो 1-2 महीने खराब नहीं होते. ये मिल्क का नेचुरल टेंडेंसी नहीं है. नहीं है. तो obviously, like a lot of preservatives and other substances are added, a lot of flavors, a lot of like uh, colored substances to give added color, make the एंड वी food आर सो attractive. मच इनटू इट. हम लोग सॉसेजेस खाते हैं या प्रोसेस्ड Yes, फूड खाते हैं, मैकेन्स की बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हमको लगता है yes. इट्स इजियर, इट्स टेस्टियर एंड वी कैन इजीली हैव इट, बट इट्स हार्मिंग अस इन अ वेरी बैड वे. ऑल राइट. Simple example is we can just compare ourselves, our generation, with a generation like a previous or a प्रीवियस previous वन. generation. We will be able to see the difference. Different. So I would say, like as the famous dietitian says, go what your grandparents eat. Go to the locals. Yeah. Okay. What else would you like to add, Dr. Sumedha, other than this? Like, what other factors are there for cancer? Like then we can go to like organ specific cancers. So I mostly deal with cancers related to women. So as there are certain byproducts of a thought process, stress, so which also develop like have physical manifestations, like for example obesity. It is becoming a pandemic nowadays, I so would like to obesity. interrupt Dr. Sumedha. Most of the audience is in Hindi speaking. Okay, okay, If you okay, ma'am. could maintain नो नो that. नो, दैट्स फाइन. तो जैसे मोटापा है तो वो आजकल एक तरह से मतलब बहुत हम ये कहें कि महामारी का रूप ले चुका है. कि मतलब आप आजकल छोटे-छोटे बच्चों को देखो, आप मॉल में जाओ, हर किसी के पैकेट में एक बिस्किट, हाथ में एक बिस्किट का पैकेट या चिप्स का पैकेट होता है. पेरेंट्स भी वो चॉकलेट माँगते हैं या कुछ माँगते हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, बिस्किट्स पकड़ा देते हैं ताकि बच्चा चुपचाप मोबाइल देखता रहे और खाता रहे. क्योंकि उनके पास भी टाइम अब कम है, तो वो चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब बॉडी का जो नेचुरल मेटाबॉलिज़्म है, वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न्स, जैसे एंडोमेट्रियम जो यूट्रस के अंदर का कैंसर होता है वुमेन में, ओवरीज़ का कैंसर, ये सब ब्रेस्ट कैंसर्स, ये सब ओबेसिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं. लाइफ़स्टाइल, जैसे लाइफ़स्टाइल में आजकल बहुत लेट मैरेजेज़ हैं क्योंकि लाइक पीपल, मतलब बहुत लोगों को होता है कि पहले हम जॉब कर लें, जॉब सिक्योर कर लें, करियर बना लें. इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कि मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को लगता है कि हमें अर्न करना है. एंड नॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ मॉनेटरी इश्यूज़, ईगो इश्यूज़ भी बहुत होते हैं आजकल. तो जैसे Or पहले can हस्बैंड. I say that if a counter partner feels that I have studied so much, मैंने इतनी पढ़ाई की या है, मैंने इतना काम या किया है, why should I compromise or why should I stay?
या So, सो इसमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ओनली वन पर्सन शुड नॉट बी मेड टू कॉम्प्रोमाइज, दे शुड बी एबल टू रीच अ कॉमन ग्राउंड। उसमें क्या होता है कि विमेन मतलब चाइल्ड चाइल्ड बियरिंग काफी डिले हो जाता है। लाइक आजकल एवरेज एज ऑफ चाइल्ड बियरिंग 33-34 ईयर्स हो गया है, जो आई थिंक हमारे प्रीवियस जनरेशन में 24-25 ईयर्स था। तो अब उसकी वजह से क्या होता है कि ठीक है, लाइक दिस इज योर चॉइस, सो वी आर नॉट देयर टू जज एनीबडीज चॉइस इन लाइफ। पर बहुत बार ऐसा होता है लोगों में कि इतना एज होने की वजह से जो नेचुरल चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। देन यू रिसोर्ट टू अदर ट्रीटमेंट्स, जैसे कि आजकल आप देखिएगा हर गली मोहल्ले में, भी मतलब कोई भी शहर हो इंडिया का, आईवीएफ सेंटर्स आपको जरूर दिख जाएंगे। तो उसमें मतलब इतने सारे हॉर्मोन्स देते हैं, और इंडिया में कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है आईवीएफ का, और लोगों में भी उतनी अवेयरनेस नहीं है। वो एक आईवीएफ सेंटर जाएंगे, बहुत सारे हॉर्मोन्स खाएंगे, ट्रीटमेंट होगी, फेलियर हो गया, वो अबैंडन कर देंगे प्रोसीजर, दूसरे आईवीएफ सेंटर जाएंगे, वहां स्क्रैच से उन्हें हॉर्मोन्स खिलाया जाएगा। this is an बहुत बार होता है। Dr. Sumedha, I would like to add on. I have myself come into contact with many people जो IVF ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे हैं वेरियस डॉक्टर्स के यहाँ, बट हम्म। wasn't aware कि ये हॉर्मोन्स जो देते हैं वो कैंसर लीड कर सकता है। हॉर्मोन्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल में रखते हैं या रेगुलेट करते हैं। तो जी। हर वो चीज जो हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है, अगर हम उसी का अमाउंट डिसरेगुलेट कर दें, या उसी का के अमाउंट का बैलेंस अगर हम डिसरप्ट कर दें, तो ऑब्वियसली बॉडी में चेंजेस आएंगे जो लॉन्ग टर्म में कैंसर ही होगा। चाहे वो अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा वैसी चीजें खा रहे हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, या बहुत सारे वैसे मेडिसिन ले रहे हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेने तो चाहिए, पर ऐसा कैंसर जनरली ही। प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट के लिए जो लोग ले रहे हैं बिकॉज इट्स इजियर, उनको लग रहा है वी कैन स्पेंड मनी एंड वी कैन गेट इनटू दिस इजीली, इट वोंट। एंड वी डोंट टाइम। उन्हें है कि हमारे पास 3 महीने का टाइम है, हमें इसी में कंसीव कर लेना है, 9 मंथ्स के बाद ये टाइम हमारे लिए सूटेबल है, इस समय हम लीव ले इट सकते हैं। तो इज मोर अबाउट कन्वीनियंस, हाँ, कि हमें हमने अपनी उसको अडेप्ट करने से नेचुरल प्रोसेस को हमने हिंडर कर दिया, जो कि लॉन्ग रन में हमें कैंसर डेवलप कर सकती है। Am I- एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि मैंने बहुत सारी ऐसी मतलब वुमेन को देखा है, बहुत सारी ऐसी महिलाओं को देखा है जिन्होंने बहुत साइकिल आईवीएफ का ट्राई किया, एट 41 ईयर्स ऑफ एज उन्होंने वो कंसीव की, हमारे पास आई क्योंकि पेट में बहुत ज्यादा सूजन हो गई थी। मतलब 33-34, मतलब 8 महीने में हमें सिजेरियन करके बच्चे को निकालना पड़ा, और उन्हें स्टेज 4 कैंसर हो गया था साथ में। oh my God, that is really disheartening. पूरी लाइफ जिस बच्चे के लिए उन्होंने वेट किया, अब वो उस बच्चे के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पाएंगी। सो आई सीन मेनी केसेस, जैसे अभी लास्ट मंथ ही मैं मतलब इंडिया में एमआरसीओजी का एग्जाम हो रहा था, यूके का जो ऑप्शन गाइनी का एग्जाम होता है, काफी अच्छा एग्जाम होता है, तो मैं उसके एग्जामिनर थी। तो जो यूके से जो लोग आए थे उनसे मैंने पूछा कि आप लोगों ने भी क्या मतलब आईवीएफ में इतना सारा कैंसर का केसेस देखा है, क्योंकि मैं तो बहुत देख रही हूँ अभी इंडिया में। तो उन्होंने कहा कि यूके में वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है, 2 साइकिल से ज्यादा आप ट्राई ही नहीं कर सकते हो, मतलब क्योंकि इसके बाद कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। पर यह है कि यहाँ पे कंज्यूमर लॉस अभी थोड़े पुअर हैं, और प्लस ये है कि फार्मा ड्रिवन इंडस्ट्री है, ये इतना ज्यादा पैसा है इन सब मतलब फील्ड्स में ना, कि कभी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आने भी नहीं देंगे शायद। Ma'am, पर दिस इज I would like to add here. Uh, Now, suppose anyone has undergone IVF treatment and यस। they have delivered a healthy child. What precautions or preventions now henceforth the woman can take so that she doesn't develop cancer in the later stages? Anything is there for them? क्या उनके लिए कोई ऐसी रेमेडी है, क्या उनके लिए कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है जो आगे उन्हें हेल्प कर सके इस चीज से बचने से? मैम, अगर आईवीएफ ऑलरेडी हो चुका है और हेल्थी हो चुका है, अगर यंगर एज ग्रुप की वुमेन है 1-2 साइकिल में कंसीव करके, तब तो देर इज नॉट मच एडेड। I would पर say प्रॉब्लम, young woman is under 35. हाँ, but problem is like if you undergo, like if you are getting fertility treatment for the past like 6 or 7 years, you have seen अलग अलग डॉक्टर्स के पास आप जा चुके हैं, और आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि डॉक्टर्स ने क्या आपको दिया है। क्योंकि बहुत बार डॉक्टर्स भी बहुत इग्नोरेंट होते हैं, क्योंकि कभी आईवीएफ का ट्रीटमेंट कराया, फेल कर गया, बहुत उम्मीद से पेशेंट आते हैं, गुस्से में वो जला देते हैं प्रिस्क्रिप्शन।
पहले का कोई पेपर्स ही नहीं रखते। तो अगर इस केस में अगर लगता है कि वुमेन इज एट रिस्क, तो उन्हें बहुत जरूरी है कि उन्हें ट्रीटमेंट कर मतलब चेकअप एटलीस्ट कराना चाहिए वंस अ ईयर, ताकि जैसे यूट्राइन कैंसर के चांसेस बहुत होते हैं यूट्रस के Which अंदर के। checkup, I would like to interrupt, which checkup she should undergo? She should undergo like screening, cancer screening checkup by a gynecological oncologist, मतलब वो गायनाकोलॉजिस्ट जिसने कैंसर की पढ़ाई की हो, जो कैंसर का ट्रीटमेंट भी करती हो। तो अल्ट्रासाउंड, यूट्रस एंड ओवरीज ठीक है कि नहीं, जो सर्विक्स है या जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बच्चेदानी का मुंह कहते हैं, वहां पे कोई वैसे ग्रोथ या चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। कुछ भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है, एनी टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट, जैसे एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है आपको, खाना जल्दी पच रहा है, भूख नहीं लग रही है, और वॉमिटिंग लग रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है, यूरिन पास करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लीडिंग इन बिटवीन पीरियड्स हो रहा है, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो रही है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो दीज आर द सिम्टम्स व्हिच आर नॉट नॉर्मल। तो अगर वैसा कोई भी सिचुएशन आता है, देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड सी योर डॉक्टर। साथ में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेस्ट में कोई लम्प, कुछ इरेगुलरिटी, एनी abnormal increase, sudden increase in size of breast, स्किन का डिस्कलरेशन, रिंकलिंग ऑफ स्किन, अल्सरेशन, इचिंग, ऐसी कोई भी चीजें होती हैं, देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड सी योर डॉक्टर। Sure, ma'am. And here I would like to ask, ma'am, जैसे मेट्रोज में या काफी सिटीज में तो टाटा मेडिकल सेंटर्स हैं जहाँ पे हम अंडरगो कर सकते हैं टेस्ट के लिए, पर अगर मानो अगर किस सिटी में नहीं है, वहां हम किसे हम्म। कंसल्ट कर सकते हैं या कौन से रिलायबल हॉस्पिटल्स हैं जहाँ हम जा सकते हैं? आई मीन विच सेंटर्स वुड यू रिकमेंड? बिकॉज मैम आप अपने टाटाज इज अ रिलायबल एंड अ रिनाउंड नेम हम्म। एंड आप अपने लोकल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, एंड देन शी, आई थिंक शी वुड बी एबल और ही वुड बी एबल टू रेफर यू अकॉर्डिंगली, क्योंकि टाटास का रीच होता ही है, मतलब यूजुअली क्योंकि उन्हें रेफरल पेशेंट्स आते ही हैं। तो जो भी जैसे जो डॉक्टर्स हैं जो 10-15 ईयर से प्रैक्टिसिंग है, तो दे यूजुअली नो कि कौन से जगह पे रेफर करना चाहिए। और अगर आप जानते हैं आपके एरिया में कोई गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, या टाटा से बहुत सारे डॉक्टर्स ट्रेन होके निकलते हैं, हर कोई तो टाटा में काम नहीं करते, तो वैसे कोई हो जिन्हें टाटा का एक्सपोजर हो, जिन्हें पता हो, आप उनके पास जा सकते हैं। अगर उनके क्लिनिक में लिमिटेशन है किसी ट्रीटमेंट को करने का, तो दे कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली कि आप कहाँ जाके ट्रीटमेंट करो। Okay, so initially, अगर मानो somebody has undergone IVF several times and she is in 40 and above and she wants to go for a regular checkup, तो वो कोई टाटा से रेफर्ड डॉक्टर है जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनको विजिट कर सकती हैं अगर उनके यहाँ टाटा मेडिकल सेंटर या इस तरीके से सेंटर्स नहीं है? हाँ, अगर कोई कैंसर सेटअप नहीं है उनके शहर में, तो दे कैन डेफिनेटली गो एंड गेट हर सेल्फ चेक। Next, my next question is, uh, once you had mentioned causes of cancer is also emotional. So a person who is emotionally traumatized, is he or she on a high risk of cancer too? आई वुड डेफिनेटली से मैम यस, शी इज ऑन हाई रिस्क, क्योंकि जब मैं टाटा मेडिकल सेंटर में फेलोशिप कर रही थी, तो दिस वाज माय फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो जो भी कैंसर के पेशेंट्स आते थे, मैं उनका क्वेश्चन लेती थी, जैसे हम उनका मेंटल क्वेश्चन लेते थे कि मतलब इमोशनल स्टेटस क्या है, जिसे हम मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी कहते हैं। तो उसमें मोस्टली क्या था कि लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंटली कुछ रिग्रेट था लाइफ में, या कुछ ऐसा एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हो गया अकॉर्डिंग टू देम जो नहीं होना चाहिए था, एंड दे केप्ट रिप्लेइंग इट बैक एंड बैक कि ऐसा होता तो कैसा होता, या दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, इस तरह की चीजें, या डिप्रेशन, या बहुत बार वुमेन बहुत ज्यादा डोमिनेटेड रहती हैं, तो उनके अंदर पैसिव अग्रेशन बहुत जमा हो जाता है, सो Suppression है हमारी सोसाइटी, सप्रेशन। पेट्रियार्कल तो सोसाइटी में। दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट टू द पर्सन whom दे शुड एक्सप्रेस। तो वो क्या होता है कि वो डिफरेंट वेज में वो एंगर निकलता है। बहुत बार क्या होता है कि उनका हेल्थ सफर करता है, खाने पे गुस्सा निकालती हैं, ठीक अच्छी चीजें नहीं खाती, हेल्थ पे ध्यान नहीं देती, एक्सरसाइज नहीं करती, एडेड फैक्टर्स बहुत हो जाता है। अब जैसे हम जेनेटिक फैक्टर्स की बात करते हैं, तो आप ये समझिए कि जेनेटिक फैक्टर इज द फर्स्ट ब्लो विच अ पर्सन गेट्स इन लाइफ टू डेवलप कैंसर, पर एवरी पर्सन हु हैज अ जेनेटिक पोटेंशियल टू डेवलप कैंसर डज नॉट डेवलप कैंसर। हर किसी को तो नहीं होता जिसे वो जेनेटिक कंडीशन है। तो ये सब जो अदर स्ट्रेसर्स इन लाइफ है ना, वो एडेड फैक्टर का काम करते हैं, लाइक दे आर द सेकंड ब्लो।
उसके बाद ओवर्ट कैंसर हैपेंस। तो इसलिए मतलब इन सब चीजों में बहुत जरूरी है कि ट्राई टू कीप योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप मतलब अपने बारे में भी सोचो, बाहर के सर्कमस्टेंसेस इफ यू कीप ऑन मतलब हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि अब सिचुएशन ठीक होगी, अब हम जीना स्टार्ट करेंगे, अब ठीक होगी, अब हम जीना स्टार्ट करेंगे। पर एक समय जब कैंसर हो जाता है तब पीछे लोग देखते तो रियलाइज करते हैं कि वही तो जिंदगी थी, अब तो हमें कैंसर हो गया। तो लाइफ तो ऐसी ही होती है, तो उसमें मतलब देर आर थिंग्स लाइक अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है फैमिली में, देर आर लाइक यू कैन ऑलवेज सीक हेल्प, यू कैन हेल्प सीक काउंसलर्स। बहुत सारे यू कैन मेडिटेट, बहुत सारे मतलब यू नो व्हाट यू आर लाइक, ट्राई टू वो फाइंड स्ट्रेस व्हाट की गिव्स बेसिकली हैप्पीनेस। या ब्रेक द पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड वर्क ऑन द साइकोलॉजी। इफ अगर हम बहुत ज्यादा पश्चाताप, बहुत ज्यादा गिल्ट लेकर चल रहे हैं, फॉरगिव नहीं कर पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे, मानो कोई ट्रॉमेटाइज, सो बेटर इज कि हम कोई हेल्प लें और उस स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में आए, हैप्पीनेस कोशेंट को बढ़ाएं। एम आई गोइंग राइट डॉक्टर सुमेधा? या यस मैम, एब्सोल्युटली। सो बेटर एंड दैट एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ एक हैप्पी पैटर्न को डेवलप करें जो हमें अच्छा फील कराए। बेसिकली डेवलप ग्रैटिट्यूड इन लाइफ, जो हमें मिला है हम उसकी इम्पोर्टेंस समझे एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट। दैट वुड बी अ वेरी क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रैटिट्यूड। या एंड द अदर थिंग, अदर टाइप ऑफ पीपल हु डेवलप कैंसर इज एक्सट्रीमली डोमिनेटिंग वंस। क्योंकि उन्हें लाइफ में हर कुछ अपने हिसाब का चाहिए होता है, लाइक स्पेशली जो थ्रोट कैंसर जिन्हें डेवलप होता है या टोबैको च्यूइंग ये सब के साथ जो एसोसिएटेड होता है, तो उन्हें दे आर ऑल्सो ट्रॉमेटाइज्ड पीपल बेसिकली, क्योंकि जब उनके हिसाब का नहीं होता तो वो बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। ओके। तो लाइक बोथ दीज पैटर्न्स नीड टू बी लाइक ब्रोकन। नहीं, Okay, another question I would like to add, Dr. Sumedha. Does every cancer leads to death, or is it my? And second question is, how should we deal with death, or how do you, as a doctor, deal with your patient who is going to die? आप कैसे डील करते हैं उस पेशेंट के साथ जिसे पता चलता है दैट वो बहुत जल्दी जाने वाले हैं इस रोग की वजह से? और क्या हर कैंसर डेथ को ही लीड करता है? एब्सोल्युटली नो मैम, हर कैंसर डेथ को लीड नहीं करता है। और द अदर थिंग जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अल्टीमेटली हर पर्सन की डेथ तो कभी ना कभी होनी ही है। दीज आर द टू थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड। तो कभी भी जैसे अगर अर्ली स्टेज का कैंसर हमारे पास आता है तो देर आर सर्टेन कैंसर्स जो सही में क्योरेबल हैं। जैसे यूट्रस का कैंसर, अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है या मीनोपॉज होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, वो हमारे पास टाइमली आ जाए। ब्रेस्ट कैंसर, छोटा लंप है, एक्सटर्नल ऑर्गन है ब्रेस्ट, उसकी अगर प्रॉपरली टाइमली सर्जरी हो जाए तो दे आर डेफिनेटली क्योरेबल। हाँ, हम उन्हें टाइमली। लॉन्जिविटी ऑफ द लाइफ इंक्रीजेस, आपकी लाइफ स्पैन थोड़ी बढ़ सकती है। लॉन्जिविटी स्टेज द सेम, आई वुड नॉट से इंक्रीजेस, क्योंकि बट कैंसर की वजह से पेशेंट की डेथ नहीं नहीं होती। होती, जो उसका मैंने नेचुरल। बहुत जगह केसेस में ये भी देखा है कि स्पेशली इन ओल्डर वुमेन बहुत शाय होती हैं। दे फील कि अरे क्या या बता, क्या डॉक्टर के पास जाना। वो बेसिकली वो शाई नहीं होती, वो हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि द हेल्थ ऑफ द वुमेन इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन अ फैमिली। और स्पेशली जब ओल्डर वुमेन हो जाती हैं, अब जैसे बहुत सारे फैमिलीज में क्या होता है, हस्बैंड की डेथ हो गई है या हस्बैंड रिटायर हो गए हैं, दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन द चिल्ड्रन। बच्चों को टाइम नहीं है, वो सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाते हैं, रात में देर से आते हैं, ज्यादा बात करना चाहे पेरेंट्स तो बोल देते हैं कि आज टाइम नहीं है, कल बात करेंगे। तो दे फील वेरी हेजिटेंट कि मैं अपनी प्रॉब्लम कैसे बोलूं या बच्चा टाइम कैसे निकालेगा, मुझे कब लेके जाएगा दिखाने वाई के टू बी अ लिए, बर्डन, वाई टू बी अ या बर्डन। वाई टू बी अ बर्डन। तो ये सब इन सब चीजों की वजह से वुमेन इतनी हेजिटेंट होती हैं कि इनफैक्ट जो ब्रेस्ट कैंसर है जो कंप्लीटली क्योरेबल होना चाहिए, उस केस में इतना अलार्मिंग डेटा है इंडिया का, द इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी लेस कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो चारों डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है या जितने लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता है वो बहुत हाई है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से इंडिया में इन सबसे ज्यादा महिलाओं की डेथ होती है। मतलब नंबर्स, अगर इंसिडेंस कम है तो भी डेथ ज्यादा है, क्योंकि वो टाइमली ट्रीटमेंट सीख नहीं कर पाती, वो पहुंच नहीं पाती डॉक्टर के पास। तो इसके लिए फैमिलीज को भी अवेयर होना चाहिए कि दे टेक केयर ऑफ द एल्डर फोक, मतलब अपने पेरेंट्स के पूछते रहें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और मतलब वो कंफर्ट जोन होना चाहिए फैमिलीज में। और अगर जैसे हमें
ये पता चले कि ठीक है, ये कैंसर जो ट्रीटमेंट है इसकी ये हम क्योर नहीं कर पाएंगे, इसे हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो बहुत सारे कैंसर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, ये सब है, जो जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उस जैसे उसकी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलती है, वो क्योर नहीं होता, वो इंसान के शरीर के साथ जाती है वो बीमारी। वैसे ही ये सब कैंसर शरीर के साथ जाते हैं, आप टैबलेट लेते रहो, वो कंट्रोल में रहेगा मोस्ट केसेस में। कुछ कैंसर्स डेफिनेटली ऐसे होते हैं स्टेज 3 या स्टेज 4 के, जिसमें हमें पता है कि पेशेंट की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है, 6 मंथ्स to 1 year है। तो उस केस में फिर हम ये फोकस करते हैं कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ कितनी होगी ये तो हमारे हाथ में नहीं है, बट वी कैन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आज अभी से 20 years पहले होता था कि हम बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते थे पेशेंट को, कि अब तो बस 6 महीने साल भर की जिंदगी है, आप घर ले जाओ, जो होगा होगा। बट दैट 6 months वो कंप्लीट एगनी होता था पेशेंट के लिए, मतलब इतने सारी प्रॉब्लम्स, इतना कष्ट, इतना जी। पेन। तो हम अगर पेशेंट को लाइफ नहीं दे सकते, तो कम से कम इनकी जो अर्थ में उनका जितना समय बाकी है इस धरती पे, उसे हम कंफर्टेबल तो बना सकते हैं ना। तो ये भी एक पैलिएटिव मेडिसिन है, ये बहुत अपकमिंग ब्रांच है, कि पेन रिलीफ कैसे हो पेशेंट को, अगर यूरिन पास करने में या स्टूल पास करने में प्रॉब्लम है तो हम कैसे कंफर्ट दे सकते हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एवरी स्टेप ऑफ द वे हम पेशेंट को एक्चुअल सिचुएशन बताते रहें। लिसन, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अभी ये हो रहा है, 2 महीने के बाद आपके साथ ऐसा होगा, एक्सपेक्टेड है। आप खाना बंद कर दोगे, या आपका पेट फूल जाएगा, या आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बॉडी में सूजन हो सकता है, आपका शरीर सूख सकता है। तो आप क्या करना चाहोगे? ऐसा नहीं कि हम मतलब, और पेशेंट से मतलब एडवांस डायरेक्टिव्स जो होता है वो पहले ही हम पूछ लें कि वो क्या करना चाहता है, क्योंकि चॉइस ऑफ द राइट फॉर एन ऑनरेबल डेथ, ये भी पेशेंट की चॉइस होनी होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट को हम मेंटली प्रिपेयर करें और रेडी हो जाएं। और बहुत सारे केसेस में तो जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो हमें इनफैक्ट रिलीफ लगता है कि मतलब ठीक है, मतलब उन्हें They are कष्ट से free आराम from हो। the pain. या Well, Dr. Sumedha, we are running out of time. Would you like to add anything if I am missing on something? the only thing which I would like to add is be grateful for the life which you have been given. बहुत सारे लोगों के लाइफ में, मतलब मैंने आज तक ऐसा कोई इंसान तो देखा नहीं जिसके पास सब कुछ हो, या जो सर्वगुण संपन्न हो। ऐसा ही होता तो हम भगवान होते ना, इंसान तो नहीं कहलाते। तो जो है उसमें खुश रहिए, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और स्ट्रेस ईटिंग मत कीजिए, स्ट्रेस स्मोकिंग ड्रिंकिंग मत कीजिए, एंड बस जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर इफ यू हैव एनी वार्निंग साइंस, एनी डाउट्स, इट इज बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड गेट एन ओपिनियन दैट एवरीथिंग इज राइट, rather than waiting for a long time and then getting a sinister diagnosis. That is what I would like to say. थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमेधा। आपने जो भी बातें हमसे कही, इट्स एन आई ओपनर, और बहुत सारी चीजें पता है और बहुत सारी चीजें नहीं भी पता है। तो इट वाज अ ग्रेट हेल्प, और आई एम श्योर ये जो व्यूअर्स हैं इन्हें ये जरूर अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. We come to the end. Thank you, viewers, for staying with us till the end. Thank you.